आज हमारे बच्चे पढ़ने के लिए, खास करके मेडिकल एजुकेशन के लिए दुनिया के छोटे छोटे देशों में जा रहे हैं। क्या हमारी राज्य सरकारें इस प्रकार के काम के लिए जमीनों को देने में उम्दा नीतियां नहीं बना सकती हैं, ताकि अधिकतम डॉक्टर्स हमारे यहां तैयार हो? This was Prime Minister Modi's address to the nation at the height of the Ukraine-Russia crisis. As the Russian onslaught of Ukraine gathered pace, students found themselves stranded in railway stations, underground barracks, and abandoned buildings. प्रधानमंत्री जी, अब हम कहाँ जाएं? आज जो रशिया के द्वारा इन्वेजन हुआ है यूक्रेन पर, इसके बाद सिर्फ ईस्टर्न साइड नहीं, सिर्फ कीव ही नहीं, पूरे के पूरे टर्नोपिल में अफरा तफरी का माहौल हो गया है। 40 किलोमीटर पैदल चलते चलते किसी तरह हालत में बॉर्डर के पास पहुंचे। हमें कुछ नहीं पता, हमारी सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं और हमें कुछ नहीं पता कि हम वापस इंडिया कैसे जाएं। जितने भी बच्चे जो आज जाने वाले थे एयर इंडिया से, एयर इंडिया आई ही नहीं, वो पहले से ही क्यों आकर ही वापस चली गई। Operation Ganga, started by the Indian government to rescue its nationals from the war-torn country, saw close to 23,000 Indians return home. While Prime Minister Modi's ministers stepped up their PR campaign to showcase their successes, the war between the two European nations stressed the growing problem at the home front: the severe lack of medical colleges. कौन माँ बाप चाहते कि इस छोटी उम्र में अकेले भेज दे? कोई माँ बाप नहीं चाहता। लेकिन अब लगे हैं, देखिए पहले करीब 300-400 के बीच में हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज थी, अब हम करीब 700 तक पहुंच गए हैं। मोदी जी का कहना था कि हमने बढ़ाए हैं, लेकिन अभी तक वो ग्रास रूट लेवल पर उतने कॉलेजेस नहीं बढ़े हैं। कई कॉलेजेस ऐसे हो रहे हैं जिन्हें लोअर स्टैंडर्ड की वजह से पहले इनिशियली तो परमिशन मिल जाता है, ताकि ऑन पेपर ये ऐसा हो जाए कि हमने कॉलेजेस खोल दिए, लेकिन फिर 1 से 2 साल में ही उनके रिकॉग्निशन बंद हो जाती है, क्योंकि वो कॉलेज स्टैंडर्ड नहीं मेंटेन कर पाते हैं। हमें इस बात को समझना होगा कि हमें डॉक्टर्स तो बढ़ाने ही हैं, लेकिन हमें क्वालिफाइड डॉक्टर्स बढ़ाने हैं। This was Dr. Rohan Krishnan, the president of the Federation of All India Medical Association, or FIMA. He says that the number of medical colleges can't be classified as an achievement, and the focus should instead be on how many are top institutions. The number of medical colleges in India in 2021 stood at 562, with only about 50% government colleges. So Lavi, what was the reason that you chose to apply to a private university? I wasn't able to qualify NEET. I gave it 2 attempts because I wanted a government college. I gave it 2 attempts, but I was unable to clear it, unfortunately. So I had to come here. Rather giving another approach, my parents actually thought let me get me admitted in a private university. Cutthroat competition has meant students have looked to private universities, which according to students like Lavi, provide a thorough learning experience, just like a government college. I have a couple of friends who have been studying in government college also. So, the curriculum is the same. The books that they read and the books that we read, they're actually the same. So there's no difference. So it makes no difference you're there in a private or a government university. But not all can afford studying at a private university. Dr. Milind Shinde, who did his MBBS from Russia back in 2014, and is now working at AIMS, was one of those. हाँ, डेफिनेटली मैंने काफ़ी इंक्वायरी की थी उस टाइम कि उसमें कट ऑफ तो आ गया था, जो एलिजिबिलिटी के लिए जो मार्क्स थे वो तो मेरे पास थे, लेकिन जो फीस था अराउंड जैसे 6 इयर्स का 50 लाख से स्टार्ट होता था, 50 लाख से, फिर दैट वाज इन करोर्स। एंड डेफिनेटली एज बीइंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, तो इतना फीस अफोर्ड करना वाज नॉट पॉसिबल। क्योंकि किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की जो मैक्सिमम फीस रहती है, वो जितनी मुझे जानकारी, वो 1 लाख रुपए सालाना तक है मैक्सिमम, जो कि लेबर मिनिस्ट्री के कुछ कॉलेजेस हैं उनकी हैं।
अदरवाइज जो दिल्ली गवर्नमेंट में हमारी कॉलेजेस RML, सफदरजंग, इन सारी जो कॉलेजेस हैं उनकी फीस 20 से 25 हज़ार रुपये सालाना है, उससे ज़्यादा नहीं है। और प्राइवेट कॉलेज में यही फीस आपकी 12 से 15 लाख रुपए के लगभग सबसे कम, और कुछ कॉलेजेस जैसे कि DY पाटिल बॉम्बे वगैरह में ये फीस 25 लाख रुपए सालाना तक जाती है। तो यदि 4-4.5 साल का कोर्स है तो ये 70-80 लाख से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक किसी को MBBS करने में खर्च हो जाता है। Dr. Krishnan explains that the extensive cost of equipment and facility, along with lack of financial support from the government, means that private universities use exorbitant fees as a measure to keep operations running. To make medical education more affordable, earlier this year, the National Health Commission, or India's regulatory body for medical studies, mandated that the fees for 50% seats in private universities be on par with government colleges for the upcoming academic year. As per the Ministry of External Affairs, over 1 lakh students are studying medicine in non-English speaking countries. And between 2010 and 2020, only 1 in 5 actually passed the Foreign Graduates Medical Examination, or the FMGE, the licensure requirement for to-be doctors graduating from non-English speaking countries to practice medicine in India. This is despite the number of students taking the exam tripling over the same period. Dr. Krishnan says these figures are hardly surprising. ये जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, ये बेसिक लेवल एग्जामिनेशन है। ये मिनिमम एलिजिबिलिटी ऑफ एजुकेशन को टेस्ट करता है, मिनिमम क्लिनिकल स्किल को टेस्ट करता है। मैक्सिमम जो पासिंग रेट रही है वो 13% रही है आज तक। तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं जो बाहर के देशों में एजुकेशन पॉलिसीज़ हैं, जो मेडिकल ट्रेनिंग और मेडिकल टीचिंग है, जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो क्लिनिकल ट्रेनिंग है, बाहर के देशों में ये चीज़ों की कमी है। FMGE का पासिंग रेट काफ़ी लो है। आपने ये एग्ज़ाम दिया मिलिंद, क्यों होता है इतना मुश्किल बच्चों के लिए ये एग्ज़ाम देना? एग्ज़ाम को पास करना इट्स नॉट रियली वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। मैंने खुद फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है विद अ वेरी गुड स्कोर। इट्स लाइक इंडियन स्टूडेंट ने तो वो कभी दिया नहीं, वो तो बस FMGs ने दिया है। अगर तो हमें वो कंपैरेटिव फैक्टर नहीं है कि अगर वो एग्ज़ाम इंडियन स्टूडेंट देते तो वो कितना पास कर पाते, क्योंकि 50% पासिंग रेट है सर। और अभी जो NB का जो नीट PG का एग्ज़ाम हुआ उसमें एलिजिबल होने के लिए इंडियन स्टूडेंट्स के लिए भी वो जो एलिजिबिलिटी कट ऑफ है वो बार बार NB नीचे लेके आता है आफ्टर रिजल्ट, आफ्टर काउंसलिंग प्रोसेस है स्टार्टेड। तो हमारे पास वो कंपैरिजन नहीं है कि हमारे पास बस ये डेटा है कि FMG कितने % पास होते हैं, लेकिन अगर वो एग्ज़ाम इंडियन स्टूडेंट्स को लगाया जाए तो वो कितना पास होंगे वो हमारे पास डेटा नहीं है। मिलिंद, आपने रशिया में पढ़ाई की है और इंडिया में भी की है। इन दोनों देशों में डिफरेंस क्या है एजुकेशन लेवल्स का और एक्सपीरियंस का? इंडियन मेडिकल एजुकेशन सिस्टम इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, और इसमें जो हमारा मेजॉरिटी जो है वो है पेशेंट एक्सपोजर। जो बाहर के कंट्रीज़ है, जो यूरोपियन कंट्रीज़ या फिर रशियन कंट्रीज़ है, उसमें जैसे हमारे पास जो डिसीजेस होते हैं जो एंडेमिक है, जैसे इन्फेक्शियस डिसीज है लाइक TB हो गया, लाइक लॉट ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज, तो ये डिसीजेस आपको वहाँ पे ज़्यादा देखने को नहीं मिलते बिकॉज दीज आर लाइक डेवलप्ड कंट्रीज, तो वो एक्सपोजर आपको कम होता है। There are close to 16 lakh applicants every year and only about 87,000 medical seats available in this country, only about half of which are actually in government colleges. While the Indian government has taken steps to address this issue and make medical education more accessible to everyone, there's still a lot that needs to be done. It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.